हेलो बच्चों पार्टी, आई एम बैक। आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया है ना। चलो, बट विदाउट फर्दर डिले वी विल गेट स्टार्टेड. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, class 8. Okay, resources. Chapter number 1 is resources. Okay, so what are resources? Resources क्या होते हैं बेटा? Resources जो हैं whatever we use, हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं अपनी नीड के लिए in our day to day life, it is known as resources. So we'll say that anything or whatever is needed by human being or a mankind in our day to day lives, okay, and which has a use of its own, it is known as resources. ठीक है, as in your book I am again taking NCERT book for this. So see here, it is the clothes, utensils, food grains, combs, bottle of honey and books. These are all जो भी हमें किसी काम करने में मदद करती है चीज़, या even human being. Okay, I'll come to that just a later on. So उसको हम resource कहते हैं. ठीक है. So in your book, this Mona and Raju, they are helping their mother and they are in cleaning or something, and they are using these, they are touching these clothes and utensils and all that thing. So anything that can be used to satisfy a need is a resource. हमारी जो ज़रूरत है, सपोज कीजिए I want to write on a blackboard, so उसके लिए क्या ज़रूरत होगी मुझे? I need a chalk. So this piece of chalk will be a resource for me. It will help me to write or draw something on the board. And if I want to rub that thing, I need this duster. So this duster is also a piece of my resource. Okay, pen, pencil, books, even me, I am a resource here. I am taking your class, I am a resource here. You need me, you need a teacher. Okay, समझ में आया? आपको एक टीचर की ज़रूरत है एक कंटेंट को बताने के लिए. सो यू नीड मी, सो आई एम ऑल्सो अ रिसोर्स, बट आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स. ये क्या होता है हम इसको बाद में पढ़ेंगे. अभी लेट्स कम हियर. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from your school, the textbooks you use to study, these are all resources. ठीक है. Your father has prepared a tasty snack for you. And the fresh vegetable he used is a resource. यहाँ पे मैंने कुछ बनाया है. I would like to show you. See here, these are all, I think it's clear to you. Okay, see थोड़ा सा ग्लेयर कर रहा है ये. रिसोर्सेज, अ पेयर ऑफ सीजर. पेयर ऑफ सीजर्स जो है वो हमें यूज करना होता है व्हेन वी वांट टू कट एनीथिंग. ओके, टूथब्रश, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स वी ऑल वांट. जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं सबसे पहले हम इसी का यूज करते हैं. देन डस्टर, चॉक, दिस इज comb, that's a bottle of honey, frying pan your mother is using here, है ना. तो these are all source of resources. ठीक है, ये सारे हमारे resources हैं. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये resources, कोई भी चीज़ जो है वो resource कैसे बनती है, right? Okay, so how does something become a resource? राजू now wanted to know कि राजू को ये नहीं पता कि कैसे एक चीज़ जो है वो रिसोर्स बन जाती है. So for it is Amma told the children that things become resources only when they have a value. किसी भी चीज़ की अगर कोई वैल्यू है तभी वो हमारा रिसोर्स बनता है. अब पहले ये समझो, डस्टर, आई वॉन्ट टू सपोज आई वॉन्ट टू रब दिस, और मेरे पास ये नहीं है. ठीक है, मुझे रब करना है, अचानक से मेरे पास ये आ जाता है, तो इट हैज़ अ वैल्यू. ठीक है, इसकी एक वैल्यू हो जाती है. वैल्यू मीन्स इम्पोर्टेंस, वर्थ. ठीक है, तो इसकी एक वैल्यू हो जाती है और मैं इससे ये अपना रब कर देती हूँ. नाउ दिस डस्टर हैज़ बिकम अ रिसोर्स. ओके, I want to cut a piece of cloth or a paper while drawing something, so I could not cut with my fingers, obviously, है ना बेटा. तो मुझे ये पेयर ऑफ सीजर्स चाहिए.
तो जब ये पेयर ऑफ सीजर्स आएगा, बिकॉज मेरा रिक्वायरमेंट है ये, मेरी नीड है ये, तो नाउ दिस पेयर ऑफ सीजर्स विल बिकम अ resource. This is what Amma told Raju here, that I am repeating. It's the use or the utility give it a value. ठीक है? All resources have some value. जब हमें उसकी value होती है. अब value क्या होती है? Now let's come to this point. Value क्या होती है? Value is worth, कीमत, मूल्य, ठीक है? दोनों चीज, उपयोगिता, इसकी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि मुझे इसका उपयोग करना है, मुझे इसकी ज़रूरत है, महत्व है इसका। मेरे क्लास लेते वक्त इस डस्टर का क्या महत्व है? बिकॉज आई नीड इट फॉर टू रब द ब्लैक बोर्ड। तो अब ये इसका वैल्यू हो गया। एंड वैल्यू जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है इकोनॉमिकल वैल्यू। इकोनॉमिकल वैल्यू मीन्स मनी, द अमाउंट ऑफ द मनी दैट समथिंग इज वर्थ ऑफ। किसी चीज़ के लिए हम जब पे करते हैं, सपोज कीजिए कि यू आर गोइंग टू द मार्केट टू बाय सम मैंगोज, ओके, ऑब्वियसली वेन एवर वी बाय समथिंग वी हैव टू पे द मनी, ठीक है। तो दोज मैंगोज, उनकी कीमत क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू क्या है उनकी? दैट द अमाउंट 60 और 80 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, जो भी वट एवर, 100 रुपी पर केजी वट एवर, ठीक है, तो वो है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, दे हैव, जैसे मेटल है, गोल्ड है, प्रेशियस है, देर आर सो मेनी टाइप ऑफ मेटल्स, राइट। गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, राइट। आयरन है, उसका लेसर वैल्यू है, उसका प्राइस मनी जो है वो कम है। गोल्ड है, उसका वैल्यू, प्राइस मनी जो है उसका वो ज़्यादा है, तो उसका वैल्यू ज़्यादा है। वैल्यू मीन्स वर्थ, वर्थ होना चाहिए, कीमत होनी चाहिए, महत्व होना चाहिए, ठीक है। Some resources have economic value, some do not. For example, metals may have an economic value. A beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human need. एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप बनाया है आपने, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग कि आप कहीं खरीद से लेके आए हो, क्योंकि फिर उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगा। इफ माई सन हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप और वो मुझे गिफ्ट करता है, तो उसकी एक मूल्य है, एक कीमत है, मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। वो मेरी एक ह्यूमन नीड है कि मैं उसको अपने रूम में उसको हैंग करती हूँ, ठीक है। तो कीमत दोनों तरह की, एक इकोनॉमिकल वैल्यू और एक नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, जो हम इकोनॉमिक पैसों में नहीं तोलते हैं, जिसका वर्थ हम पैसों में नहीं करते हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता होती है, ठीक है। सम सोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, और कुछ सोर्सेज जो हैं वो टाइम के साथ वैल्यूएबल होते हैं। कैसे? लेट्स सी यार। योर ग्रैंडमदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। मतलब आपकी ग्रैंड मदर हैं, पुराने हमारे जो ग्रैंड मदर्स थे, ग्रैनीज थे, दे यूज होम रेमेडीज टू ट्रीट कॉमन एलिमेंट, सर्दी बुखार जो हो गया, सर में दर्द हो रहा है, खांसी हो रही है, तो पहले ज़माने में वैद वगैरह होते थे और उसी से चलते चलते लोगों ने घर में भी होम ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। बट नाउ अडेज हम बाहर जाते हैं डॉक्टर्स के पास एंड दे प्रिस्क्राइब अस अ ट्रीटमेंट, ओके। सो हो सकता है कि आज की डेट में आपके जो ग्रैंड मदर हैं, उनकी जो होम रेमेडीज हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, उनकी आज कोई इम्पोर्टेंस ना हो, कोई कीमत ना हो, कोई मूल्य ना हो या महत्व ना हो। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को, क्योंकि दे आर इफेक्टिव, ठीक है, दे सेड के कफ है तो जिंजर और हनी ले लीजिए, दे आर इफेक्टिव। यू कैन सी कि विक्स कंपनी जो है, आई एम सॉरी मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन विक्स कंपनी जो है वो जिंजर एंड हनी का एक फ्लेवर देती है, तो जिंजर एंड हनी इज यूज टू क्योर द कफ, है ना। अब विक्स कंपनी ने वो पेटेंट कर लिया। पेटेंट करने का मतलब क्या होता है कि एक्सक्लूसिव राइट, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। कोई भी इन्वेंशन या कोई आइडिया हो, उस पर हम लीगली अपना एक राइट ले लेते हैं कि ये पेटेंट है, ये हम ही बनाएंगे, ठीक है, और कोई और नहीं। अगर कोई और करता है तो दैट इज इलीगल, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट इज कि अगर आपके ग्रैंड मदर के जो होम रेमेडीज हैं उसमें अगर कोई मेडिकल फर्म पेटेंट करा लेती है और वो उसको सेल आउट करती है, जैसे हम विक्स खरीद के लाते हैं, तो फिर उस होम रेमेडी की, यानी कि जिंजर और हनी की, जो हमारे घर में रहता है, उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू हो गई है, ठीक है। समझ में आया बेटा? चलो,
Time and technology are two important factors that can change substances into resources. अच्छा, टाइम और टेक्नोलॉजी भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज करने के लिए. जैसे अभी हमने बताया जिंजर एंड हनी का जो मिक्सचर है, तो वो बाय द टाइम जो है वो यूज़ होने लगा और बाहर उस चीज़ को दवाइयों के फ्लेवर में, दवाइयों में यूज़ किया जाने लगा, तो उससे वो रिसोर्स बन गया. ठीक है. बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल. अब ये दोनों चीज़ें, टाइम क्या है उसकी नीड बन गई है. ठीक है. जैसे बल्ब इन्वेंट हुआ था, ठीक, बल्ब इन्वेंट हुआ था, वो उस टाइम की नीड थी. ठीक. अब वो बल्ब इन्वेंट हो गया, उसके बाद बहुत सारे CFLs एंड ट्यूब लाइट्स एंड एवरीथिंग बन गए दुनिया जहान के. ठीक है. तो वो बन गए हैं, तो उसकी एक वैल्यू हो गई है. पीपल themselves आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. पीपल, हम लोग खुद, इंसान, ह्यूमन बींग, जैसे मैंने अभी बताया कि आई एम अ रिसोर्स. बीइंग अ टीचर हियर, आई एम अ रिसोर्स टू माई स्टूडेंट्स, कि मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ, उन्हें मेरी ज़रूरत है. It is their ideas, knowledge and inventions and discoveries that led to the certain of more resources. और क्या हुआ कि इंसान आया, उसके पास दिमाग था, उसने इन्वेंशंस किए, उसके आइडियाज़, उसके डिस्कवरीज, उसकी नॉलेज की वजह से हमारे पास उसमें और फर्दर रिसोर्सेज जुड़ते गए. जैसे बल्ब बन गया, जैसे बल्ब बना. ठीक है. तो ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर. ठीक. बाकी सारी चीज़ें बनी, टेलीफोन बना, उसके बाद मोबाइल्स बने और बहुत सारी चीज़ें बनती चली गई. ठीक है. फ्रिज है, AC है, दीज आर ऑल आर रिसोर्सेज. तो वो किससे बने? बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स. उनके दिमाग के, उनके इन्वेंशंस, उनके नॉलेज, उनके स्किल्स, उसको यूज़ करके. द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transportation. ठीक है. अब डिस्कवरी हुई थी फायर की, तो उससे क्या पता चला शुरू में कि कुकिंग के लिए. ठीक है. फायर जब जो मैन थे, अर्ली मैन जो थे, तो वो अर्ली ह्यूमंस ने फायर की डिस्कवरी करी, तो उससे वो कुकिंग करते थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे एक्सट्रीम वेदर से या वाइल्ड एनिमल से. उसके बाद धीरे धीरे उसके जैसे जैसे सेटलमेंट हुआ लाइफ का, सिविलाइजेशंस बने, तो फायर का यूज़ उनको आने लगा कि पॉट्स वगैरह बनाते हैं तो उसको बेक कर दें. ठीक है. तो वो दूसरी चीज़ें आने लगी. या जब व्हील बना था, तो वो उसके व्हील्स के जो हैं काफ़ी ढेर सारे इन्वेंशंस हुए, हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हुए. बहुत सारी जो हमारी मशीनरी है, तो वो भी व्हील के ज़रिए चलती है, या छोटे व्हील, बड़े व्हील. तो वो उसके फर्दर उसके जो है रिसोर्सेज जो है वो ब्रॉड होती चली गई डिस्कवरीज. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. अब जो इलेक्ट्रिसिटी है, टेक्नोलॉजी जो बड़ी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से बिजली बनाना. तो जो क्या कहते हैं उसे, फास्ट फ्लोइंग वाटर जो होता है, तो वो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन गया. काहे के लिए? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स होते हैं. हमारे अलीगढ़ के पास नरोरा में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, तो वहाँ पे और वो जनरेट करते हैं, और उसी प्लांट की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम लोग सब अपने घरों तक यूज़ करते हैं. ठीक है. अब नाउ आई होप कि इतना तो समझ में आया. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. इसमें अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो बेटा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैम ये वाली चीज़ नहीं समझ में आई, हमें दोबारा एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना दीजिए. ठीक है. नाउ टाइप ऑफ रिसोर्सेज. टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो है वो जनरली हम काय में क्लासीफाइड करते हैं? नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स. ओके. ओके. नाउ लेट्स सी another thing. I wish कि आपको दिख रहा हो. See, this is a tree. Okay, tree. This is a table, and this is I tried to make a person carrying some loads on his head. Okay, so natural resource, human made and human. नेचुरल रिसोर्स, यहाँ पे हम ट्री ले लेते हैं, ये नेचुरली होते हैं अकरिंग. ट्री इज अ नेचुरल थिंग. ओके. प्लांट है, नेचुरली ग्रोन होता है, तो ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है. अब ट्री से हम कितनी ढेर सारी चीज़ें बनाते हैं. ये ह्यूमन मेड हो गया. टेबल बन गई, वुडन टेबल. हमने ये डस्टर दिखाया था, इसका ये पीछे का हिस्सा वुडन है. बहुत सारी चीज़ें हम फर्नीचर वगैरह वुडन बनाते हैं, तो दैट इज़ हैंडमेड. एंड ह्यूमन रिसोर्स. अभी फॉर द टाइमिंग, एज आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स एज अ टीचर फॉर माई स्टूडेंट, एंड
this is a labor. A labor is working here, right? And he's carrying some sort of loads on his head. तो ये human resource है, ठीक है। तो ये 3 तरह के हम क्लासिफाइड करते हैं रिसोर्सेज को। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। जब तक आप इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इफ़ यू वांट समथिंग मोर कि मैम ये नहीं आया, यू कैन आस्क मी, ओके। अप टिल देन, बाय बाय।